Good evening, students. Today we are going to start with our new chapter in grammar, that is pronouns. We'll learn their use and we'll also try to find out common errors in their use. Yesterday we have finished with the chapter noun. Okay, I hope the noun case, noun gender, noun number are all very clear to you. You know how to make singular, plural, you know how to make genders. So now, if you have any doubt, you can go through the videos once again. And these pronouns, they play a very important role in editing. So let's straight away start with pronouns. I hope all of you know what is a pronoun. Pronoun is a word which is used in place of noun, जिसको नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी संज्ञा के स्थान पे जो यूज होते हैं इसको हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं. क्या कहते हैं? सर्वनाम. ओके, सो ये आप यू कैन सी पर्सनल प्रोनाउन. दीज आर टाइप्स ऑफ pronouns: personal pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, relative, indefinite, reflexive and intensive pronoun, and reciprocal pronoun. Students, it is not important that you should know all the names of how many types of pronouns are there and what are the definitions. No need to learn the definitions. You should understand the concept. What is more important is the concept, because concept is we are in integrated grammar. Concept is asked. We don't ask definitions, we don't ask example, anything like that. So please be very clear. So straight away, one more pronoun which is used in many grammar books, that is distributive pronoun. Distributive pronoun. One more pronoun is very commonly used in some of the grammar books, you will find them. So we should know all the types of pronouns. Okay, distributive, each, every, all these things come in distributive pronouns. Now let's start with personal pronoun. Okay, personal pronouns are nouns used to replace people, things, to make sentences shorter and clearer. What is the main purpose? To make sentence shorter and clear. Examples of personal pronoun include I, we, you, ये सब दिए हैं. Okay, now what we have to study in this is, most important thing is that we should know subjective personal pronoun, objective personal pronouns, and possessive. This is reflexive. Reflexive we will do afterwards. Today we will do only personal pronoun chart. Okay, now subjective, I have taught you the cases, noun case. So you see how grammar is interrelated to each other. अगर आपको सब्जेक्टिव केस याद है तो आपको आराम से पता लग गया होगा मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ. सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पोजेसिव केस. These are the three cases we are dealing again. Now we are dealing them in the form of pronouns. These are personal pronouns. I or we. Okay, they are I and we. They are subject pronoun. ठीक है, they are subject. I and we. I for singular and we for plural. We should know which pronoun is singular and which pronoun is plural. Okay, this is very important. I मतलब मैं, we माने हम सब, ये plural में हो गया. You is second person pronoun. ठीक है, ये सेकेंड पर्सन है. आई और वी किस में आते हैं? फर्स्ट पर्सन में. ये आपके पास चार्ट सबके पास है, आई नो. ही, शी, दे, इट, ये सब किस में आते हैं? थर्ड पर्सन में. ठीक है, ये सब किस में आते हैं? थर्ड पर्सन में. तो जब सब्जेक्ट के स्थान पे आएंगे तो इनको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस. जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस. और जब संबंध बताते हैं तो पॉजेसिव केस बन जाते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउंस बन जाते हैं. ओके, नाउ यू सी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है? दैट वी शुड नो each and meaning of them. Subject, verb, object is the base of sentence. I have told you so many times. तो जो सब्जेक्ट है उसके स्थान पे ये आएंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पे ये आएंगे. कभी भी हम मी को सब्जेक्ट के स्थान पे नहीं लगा सकते, कभी भी हम आई को ऑब्जेक्ट के स्थान पे नहीं लगा सकते. ठीक है, दिस इज हाउ ग्रामर गोज. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ वी विल टेक इन डिटेल all the personal pronouns and many rules according to them. Many new things I will tell you regarding this personal pronoun. What mistakes are we making while we are writing these personal pronouns? Okay, now see, first is nominative case. Nominative case, I have told you, all the subject, जो भी सब्जेक्ट इसमें आते हैं वो सब नॉमिनेटिव केस में आते हैं. ओके, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों में. यानी कि आई, वी, ठीक है, फर्स्ट पर्सन में, यू सेकेंड पर्सन में. ओके, और थर्ड पर्सन में क्या है? यू सेकेंड पर्सन में, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट सिंगुलर के लिए है ये, और ये प्लूरल दे के लिए है. ओके, तो आई, वी हमारा किस में आ गया? आई सिंगुलर, वी प्लूरल, फर्स्ट पर्सन.
यू सेकंड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल बोथ, यू दोनों में इस्तेमाल होता है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। और ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर और दे प्लूरल। ये हो गया हमारा नॉमिनेटिव केस। समझ में आ गया सबको? एनी डाउट? ओके, नाउ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस होता है जो हमारे ऑब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जो वर्ब के बाद आते हैं, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव केस को हमेशा हमें ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करना है। जैसे आई का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? मी। वी का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? अस। तो ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया। यू का ऑब्जेक्ट क्या है? यू। ठीक। ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम, है ना। क्लियर? तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव केस है। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो कभी भी सब्जेक्ट के स्थान पे हम वर्ब को नहीं, ऑब्जेक्ट को नहीं लगा सकते, ऑब्जेक्ट के स्थान पे वर्ब को नहीं लगा सकते। अगर हम उसको लगाना है तो हमको चेंज करना पड़ेगा, जैसा हम एक्टिव पैसिव में आपको बताएंगे आगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज पोजेसिव केस। पोजेसिव केस में मैंने बताया इन सब का ही, आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आई का माई, ठीक है, आई का क्या हो जाएगा? माई। वी का क्या हो जाएगा? अवर, ठीक है। और यू का क्या हो जाएगा? योर। ही का क्या हो जाएगा? हिज। शी का क्या हो जाएगा? हर। इट का क्या हो जाएगा? इट्स। दे का क्या हो जाएगा? देयर। क्लियर? ये सारे हमारे पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा इम्पॉर्टेंट है कि जब हम बात करते हैं हिज की, जैसे हम हिज प्रोनाउन को लेते हैं, हिज प्रोनाउन को हम ले रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, हिज प्रोनाउन को। तो इसको हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम पोजेसिव इसको एडजेक्टिव बता सकते हैं। ये क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव का भी काम करता है, ओके। और ये पोजेसिव प्रोनाउन का भी काम करता है। अब जब हम एडजेक्टिव्स पे जाएंगे तब हम दोबारा इसको डील करेंगे। अब पोजेसिव एडजेक्टिव कैसे, आप लोग पूछोगे मैम कैसे पोजेसिव एडजेक्टिव है? जैसे हमने बोला दिस इज़ हिज बुक, क्या बोला हमने? दिस इज़ हिज बुक, ठीक। तो ये बुक के पहले हिज आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया? पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब हमने बोला दिस बुक इज़ हिज, दिस बुक इज़ हिज, तो क्या हो गया यहाँ पर? हिज आखिरी में आ रहा है, तो यानी कि ये प्रोनाउन हो गया। यहाँ पर ये क्या हो गया? प्रोनाउन। ये बुक को क्वालिफाई कर रहा था हिज, इसलिए एडजेक्टिव बन गया। यहाँ पर लास्ट में आ रहा है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, ये खुद ही अपने आप में एक प्रोनाउन है, तो ये ठीक है। तो हिज को हम पोजेसिव ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव उसमें यूज़ कर लेते हैं। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट ये हो गया पोजेसिव। अब आता है देन और एज। अब ये देन और एज को भी हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए कि देन और एज को हम कैसे समझा सकते हैं, ठीक है। देन और एज को हम कैसे कर सकते हैं? अब देखो, देन और एज जब भी कोई सेंटेंस में आ रहा है, जैसे सपोज ही इज़ टॉलर देन, अब ये जब देन आ गया, ठीक है, तो इसके बाद हम ये मान के चलेंगे कि जो प्रोनाउन है वो कंप्लीट करेगा सेंटेंस को। कौन कंप्लीट करेगा? प्रोनाउन को। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? देन आई। हम यहाँ पे देन मी नहीं लगा सकते। समझ में आ गया? ये कई बार एरर में ये मिस्टेक आती है। तो ही इज़ टॉलर देन आई, तो आई देन, जब भी ये देन शब्द को आप देखें, देन माने कंपैरेटिव वर्ड है, या जब आप एज वर्ड को देखें एज, तो भी आप देख लेना, जैसे ही इज़ एज गुड एज गुड एज, जिसे उसमें कंपैरेटिव में हो गया ना, एज गुड एज प्लेयर, एज गुड एज प्लेयर एज आई। यहाँ पर भी कभी भी हम मी नहीं लगाएंगे, मी गलत हो जाएगा, ठीक। तो ये वाले स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखना है कि जब भी देन और एज कंपैरिजन के लिए आ रहा है, तो उसके बाद हम हमेशा कौन सा केस लगाएंगे? सब्जेक्टिव केस, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं आएंगे। कौन से प्रोनाउन आएंगे? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्लियर? ओके। अब हमारा नेक्स्ट वाला रूल हम चलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू बी। अब टू बी क्या होता है? मैंने बताया तुम लोग को कि बी इज़ द मदर ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब्स। बी क्या है? मदर है ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स की। इसके अंडर सारे हेल्पिंग वर्ब्स आ जाते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, सब आ जाते हैं। तो जब भी आप देखेंगे कि इसके बाद हमको, अगर सपोज इज़ के बाद हमको यहाँ पर कोई प्रोनाउन लगाना है, तो क्या आएगा इसमें? हमेशा सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्टिव, आई आएगा,
तो क्या जैसे हमको बोला इट इज़ आई, इट इज़ आई, इट इज़ मी नहीं होगा, इट इज़ ही नहीं होगा, इट इज़ आई. इफ़ आई वर ही, इफ़ आई वर नॉट हिम, इफ़ अगर हम लिख रहे हैं इफ़ आई वर ही, इफ़ आई वर ही, अगर मैं वर है ना, हेल्पिंग वर्ब्स की सब ये हैं डिफरेंट फॉर्म्स बी की. जब इनके बाद हमको लगाना है तो हमको फर्स्ट पर्सन भी लगाना है, फर्स्ट पर्सन नहीं सॉरी सब्जेक्टिव लगाना है. ठीक है, सब्जेक्टिव वाले आपको याद है ना, ऊपर मैंने आपको समझाए थे नॉमिनेटिव केस, पूरा नॉमिनेटिव केस ही आएगा. तो ये दो चीज़ों को आपको याद रखना है कि जब देन और एज आएगा इसके बाद हमको सब्जेक्टिव केस लगाना है, और जब इसके टू बी के बाद, जब सेंटेंस टू बी है, मुख्य क्रिया नहीं है, सहायक क्रिया है बीच में, उसके बाद अगर प्रोनाउन आना है तो वो सब्जेक्टिव केस में ही आएगा. क्लियर. अब नेक्स्ट आता है इट. इट प्रोनाउन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इट प्रोनाउन को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, सारी लाइफलेस चीज़ों में, है ना. जैसे हमने बुक के लिए, लाइफलेस चीज़ों के लिए बुक के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो टेबल के लिए, इन सब के लिए. लोअर एनिमल्स, बर्ड्स या बीस्ट, लोअर, तो जो लोअर एनिमल्स होते हैं, लोअर एनिमल, ठीक, उन सब के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं. ये मैं आपको बता चुकी हूँ उसमें भी, बर्ड बीस्ट में. जैसे क्रोज के लिए, इफ़ यू थ्रो स्टोन्स ऑन द क्रोज इट विल फ्लाई, दे विल फ्लाई नहीं, इट विल फ्लाई. ठीक. चाइल्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, चाइल्ड के लिए. इज़ इट योर बेबी, इज़ इट योर बेबी. या कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है ना, फॉर अ पर्सन टॉक ऑफ, किसी पर्सन की हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम किसका यूज़ करेंगे, इट का. हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, इट इज़ आई, इट इज़. ठीक. ऐसे ही इंट्रोडक्टरी वर्ड में भी यूज़ कर सकते हैं, हम सेंटेंस की शुरुआत में भी इट का यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू, जैसे हम बोलते हैं इट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू, इंट्रोडक्टरी में भी शुरू कर सकते हैं. जब हम टाइम, वेदर, सीज़न की बात करते हैं तो हम इट का यूज़ करते हैं. जैसे इट इज़ वेरी कोल्ड, इट इज़ समर, इट इज़ मॉर्निंग. हम इसके लिए कोई ही या दे इस सब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, इट का. तो आपको समझ में आ गया. इट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है, इसको हमें कहाँ कहाँ यूज़ करना है. तो कई बार क्या होता है कि आपको समर के आगे ही लगा दिया या विंटर के आगे ही लगा दिया, तो आप उसको करेक्ट कर लेंगे कि क्या आएगा, इट आएगा. तो ये 5-6 बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है. ठीक है. अब हमारा नेक्स्ट आता है कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन यानी कि आपने पढ़े हुए हैं, कलेक्टिव टाइप ऑफ नाउन्स आप पढ़ चुके हैं. जैसे हमने कहा कलेक्टिव नाउन में कमिटी, किसकी बात कर रहे हैं, कमेटी की. ठीक है. कलेक्टिव नाउन में क्या, कमेटी, समूहवाचक संज्ञा कमेटी. ठीक है. अब कमेटी के लिए हम क्या लगाएंगे, हमेशा सिंगुलर और न्यूटर आएगा, सिंगुलर और न्यूटर जेंडर आएगा. कौन सा जेंडर आएगा इसमें, सिंगुलर और न्यूटर जेंडर. ठीक है, ये याद रखना. क्योंकि जैसे हमने कहा द कमेटी इज स्टिल बिजी, कमेटी इज स्टिल बिजी विथ इट्स रिपोर्ट. कमेटी के लिए क्या आएगा, इट्स. इट्स क्या है, इट सिंगुलर भी है और न्यूटर भी है जेंडर. ठीक. फिर अगर आप किसी मल्टीट्यूड, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड माने जैसे ज्यूरी, एक बहुत सारे लोगों का, ज्यूरी माने जो जजेस का समूह होता है उसको ज्यूरी बोलते हैं. तो ज्यूरी, जब भी हम किसी मल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, ढेर सारे लोगों की इकट्ठे होने की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमेशा प्लूरल लगाएंगे. कौन सा इसमें लगाएंगे हम, प्लूरल. प्रोनाउन हमेशा कौन सा होगा हमारा, प्लूरल. तो जैसे हमने कहा ज्यूरी है ना, ज्यूरी के लिए हम कौन सा प्लूरल प्रोनाउन लगाएंगे, देयर. क्या आएगा, देयर. समझ में आया. द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस. दूसरा ईच एवरी, ये वर्ड माने हर एक, हर किसी को. इसके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन लगाना है, याद रखना. ये जहाँ भी सेंटेंस में ईच एवरी देख लो, वहाँ उसके बाद सीधे सिंगुलर लगा. एवरी सोल्जर एंड एवरी सिटीजन वॉज इन पीस, भले ही दो चीज़ों से जुड़ रहा हो, एवरी सिटीजन एंड एवरी पर्सन, तो उसके लिए वर नहीं लगा देना कि 2 बार एवरी एवरी आ गया कि एवरी सिटीजन. अभी हम प्रैक्टिस करेंगे इसको आगे, तब आपको और क्लियर हो जाएगा. एवरी सिटीजन, एवरी सोल्जर, 2 हैं, एक ही सेंटेंस में एंड लगा के लगा रहे हैं. एवरी सोल्जर, एवरी सिटीजन, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 2 लोग हो गए. इसके बाद हमेशा हमारा जो प्रोनाउन आएगा वो कैसा आएगा, सिंगुलर ही आएगा. वर इन हिज पीस, वो अपनी पीस में थे. ठीक है. एवरी सोल्जर, एवरी सिटीजन वॉज इन हिज पीस, वर नहीं लगाना है क्योंकि वॉज आएगा, एक ही वचन है, वॉज आएगा, और इन हिज आएगा, एक व्यक्ति के लिए यूज होता है ना, हिज. ठीक. इसी तरह और, नीदर, नॉर, सो, नॉर, ये नॉर है, एन ओ आर.
ठीक है। और, नॉर, नीदर, नॉर, ये हमेशा जोड़े में भी चलते हैं, नीदर नॉर, ईदर और, अलग अलग भी आते हैं, और, नॉर। तो जब भी आप इनको देखो तो इसके बाद हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन ही लगाना है। क्या लगाना है? सिंगुलर। जैसे राम और लक्ष्मण हैज़ लॉस्ट हिज वॉच, और एक की बात हो रही ना, या तो ये या वो, एक ही की बात हुई ना, दो लोग तो नहीं हुए। समझ में आ गया? राम और लक्ष्मण, यानी राम या लक्ष्मण, तो एक ही हुआ, तो उसके लिए हमारा हिज आएगा। ठीक है। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम बताने जा रहे हैं कि टू जेंडर्स। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ तो राम लक्ष्मण तो एक ही दोनों हो गए, लेकिन जब हम दो जेंडर की बात करते हैं, जैसे हमने कहा मोहन एंड हिज सिस्टर, मोहन और उसकी सिस्टर, तो एक हो गया मस्कुलिन जेंडर, एक हो गया फेमिनिन जेंडर। अब दो जेंडर्स इकट्ठे हैं, अभी दोनों को हम इकट्ठे लगाए तो कौन सा प्रोनाउन आएगा? ये क्वेश्चन कई बार उठता है कि मोहन के लिए तो हिज आना चाहिए और उसकी बहन के लिए हर आना चाहिए। तो हमें इसमें क्या करना है, तो जो प्रोनाउन उसके बिल्कुल नेक्स्ट में है उसको ही हम लेंगे, जो बिल्कुल नेक्स्ट में आएगा। तो नेक्स्ट में कौन सा आ रहा है? सिस्टर। सिस्टर के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा? हर। तो हम हर ही लगाएंगे, इसका मोहन का हिज हम छोड़ देंगे। ये बहुत ध्यान रखना आप कि अगर दो जेंडर्स आ रहे हैं अलग अलग एक ही सेंटेंस में, जैसे मोहन एंड हिज सिस्टर, तो हम जो उसके नज़दीक वाला है, यानी जो हम प्रोनाउन लगा रहे हैं जो उसके नज़दीक में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, उसी के जेंडर को फॉलो करेंगे। क्लियर? उसी के हिसाब से हम प्रोनाउन को लगाएंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। तो ये बात हो रही थी, अगर सेम जेंडर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंगुलर लगा देंगे दोनों के लिए। अगर नीदर नॉर इधर और है तो उसमें सिंगुलर आ जाएगा। लेकिन अगर इसमें अगर दो जेंडर हैं तो हम सिंगुलर तो लगाएंगे, लेकिन कौन सा वाला जेंडर लगाएंगे? जो लास्ट में होगा। ठीक। अब अगर दूसरा रूल हमारा क्या कहता है कि ये तो हो गया वन नेक्स्ट टू इट, ये तो मैं समझा दिया आपको। इफ सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन जॉइन बाय ईदर और नॉर द प्रोनाउन मस्ट बी। अब क्या होगा? आप देखो, जब हम सिंगुलर और प्लूरल एक ही सेंटेंस में दो आ रहे हैं, एक आ रहा है सिंगुलर नाउन, एक आ रहा है प्लूरल नाउन। जैसे हमने कहा नीदर द टीचर, कि ना तो टीचर, नीदर द टीचर नॉर हिज प्यूपल्स। अब देखो, इसको समझो, इधर पे क्या आ रहा है? सिंगुलर, इधर पे क्या आ रहा है? प्लूरल। ठीक है। एक हमारा नाउन सिंगुलर है, एक नाउन है प्लूरल है। तो जब हम इसको नीदर और नॉर से ज्वाइन कर रहे हैं तो इसका हमेशा इसके बाद हम क्या लेंगे? द प्रोनाउन मस्ट बी, क्या होगा प्रोनाउन? प्लूरल। प्रोनाउन क्या होगा? हमेशा प्लूरल होगा। ठीक है। तो नीदर द टीचर नॉर हिज प्यूपल आर, तो इसके लिए क्या? हिज प्यूपल। ठीक है। तो इसमें क्या आएगा हमारा? प्लूरल देयर। क्या आएगा उनके लिए? पर्सनल प्रोनाउन देयर। ठीक। इसको आगे हम ये और प्रैक्टिस करेंगे हम बार बार। अभी केवल आपको ये रूल्स एक बार आपको समझ में आ जाएंगे, तो आगे जब हम सेंटेंस को समझाएंगे तो आप बहुत जल्दी इसको टैली कर लेंगे कि ये हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। तो नीदर द टीचर नॉर हिज प्यूपल सक्सीडेड इन देयर वर्क, तो देयर, तो हमने ये वाला लिया। क्लियर? अब हम बात करते हैं लास्ट वाला हमारा, ऑर्डर ऑफ पर्सन इन सेंटेंस। ऑर्डर ऑफ पर्सन को समझिए आप कि अगर एक ही सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों आ रहे हैं, एक ही सेंटेंस में तीनों पर्सन आ रहे हैं। सपोज़ कोई सेंटेंस है जिसमें आई भी आ रहा है, जिसमें यू भी आ रहा है और जिसमें ही भी आ रहा है। ठीक, तीनों आ रहे हैं। तो इसमें हमारा ऑर्डर क्या रहेगा? किसको हम कौन से क्रम में लगाएंगे? तो सबसे पहला हमारा कौन सा क्रम रहेगा? सबसे पहले हम सेकंड को लगाएंगे। सबसे पहले यू आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा? यू। यू के बाद हम क्या लगाएंगे? ही। उसके बाद लगाएंगे आई। ये इंग्लिश में रूल है। ठीक है, कि सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। क्लियर? और अगर दो हैं, थर्ड नहीं है, सपोज फर्स्ट सेकंड ही है, तो पहले सेकंड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन। क्लियर? जैसे एक सेंटेंस है, यू ही एंड आई, यू ही एंड आई स्टडी इन द सेम स्कूल, यू एंड आई विल डू अवर बेस्ट। तो हमेशा आई बाद में आएगा, है ना। आई का हमेशा लास्ट में यूज़ करते हैं। मैंने आपको कई बार पढ़ाते हुए ये सेंटेंसेस बताए भी हैं कि आई हमेशा हम पीछे को यूज़ करते हैं। ठीक है। तो और
ये हमको पर्सनल प्रोनाउन में मेन चीज़ जो ध्यान देनी है वो ये ध्यान देना है कि सब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट के प्रोनाउन आए और ऑब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट के स्थान आए। कभी भी हम मी को यहाँ नहीं यूज़ कर सकते, कभी भी आई को हम ऑब्जेक्ट में यूज़ नहीं कर सकते। जिन सेंटेंस में कर सकते हैं वो रूल मैंने आपको बता दिया कि देन और एज वाले सेंटेंस में आपको करना है, टू बी वाले में करना है। इन दो को छोड़ के बाकी आपको नहीं यूज़ करना है। इसी चीज़ को हम आगे और रिवीजन करेंगे। और अब जो आगे हमारा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं, फिर हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इसके कुछ रूल्स हैं। यही जो रूल्स मैंने आपको शुरू में बताए हैं, जो इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं जो हमारे जो एडिटिंग में हमको काम आते हैं, इन्हीं रूल्स को हम और अच्छे से दोबारा से पढ़ेंगे। आप आज के लिए इतना ही अच्छे से याद करेंगे, इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ राइट टू मी on my WhatsApp number. You have the name. Okay, thank you. Have a nice day.